So in yesterday's lecture, we have seen the definition, new definition of trigonometric ratios. नया definition देखा था, standard unit circle and all. ठीक है? अभी हम आगे चलते हैं. Let's go for the next part now. So let us continue on page number 15. We saw the new definition, जहाँ पर standard unit circle and all that we have seen. Okay? Let me take our discussion further. अभी आगे चलते हैं. यहाँ पे पेज नंबर 16 देखिए. Please refer page number 16. Page number 16. Signs of trigonometric ratios. वहाँ पर 2.1.1 हो देखिए. 2.1.2 Signs of the various trigonometric ratios. ठीक है. अब कल जो मैंने आपको बताया था उसकी अगर बात करें, कल मैंने आपको यही बताया था कि अगर इफ इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर मुझे नया डेफिनेशन उसका देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दिस इज द unit, this is the standard circle with center at the origin, point P x comma y, where this OP is making angle, this OP is making what angle? Theta. बराबर है क्या? ये कल हमने देखा था, राइट ना? तो रिमेंबर दैट ये जो है ये एंगल थीटा है, दिस OP. तो दिस एंगल कैन बी मोर एनी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल, वो ऐसे भी यहाँ पे जाएगा. तो इन दैट केस आल्सो ये जो OP होगा, ये जो पॉइंट P होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, these are the coordinates. So this x is the r cos theta and y is r sin theta. बराबर है क्या? isn't it? और हमने ये भी कल बात करी थी कि अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होगा, यूनिट सर्कल मतलब इसका r का वैल्यू कितना होगा? 1. So this will become x is equal to cos theta and y is equal to sin theta. Is this okay? Is that clear to you? Isn't it? So keeping this in mind, यही चीज हमको याद रखनी है. And now we go for the next part. So next part की तरफ अभी हम जा रहे हैं कि well, let us consider now that page number 16 consider कीजिएगा. Let me open that page. उसको open कर लेता हूँ. Page number 16. तो यहाँ पर हम अभी signs of various trigonometric ratios that we are going to see. We are going to see the signs of various trigonometric ratios. कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा? ठीक है. So this is what we are considering here. Signs of various trigonometric ratios. Now if I go to the next part here, समझो कि we are considering this, the angle theta is in the first quadrant. Let's see, the angle is in the first quadrant. This is angle theta. Can you see that? तो अगर आपको थोड़ा बड़ा भी करना है तो we can do that. Yeah. So if we see here, the angle theta is in the first quadrant, we say. तो इसका मतलब है ये जो x और y है ये पॉजिटिव होने वाले हैं ना. They are going to be positive because they are in the first quadrant. Do you understand what I'm saying there? Hello, hello, hello. Yeah, this angle theta is in the first quadrant and both x and y are positive. अगर दोनों के दोनों भी पॉजिटिव x and y, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोलता हूँ, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है व्हाट इज x इज इक्वल टू? x इज इक्वल टू cos थीटा. व्हाट इज y इज इक्वल टू? y इज इक्वल टू sin थीटा. समझ में आ रहा है क्या? तो sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर पॉजिटिव. यू सी,
साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पॉजिटिव. सो अगर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर उन्होंने वही दिया है, एक्स इज पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव मतलब साइन थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब इसका मतलब है tan थीटा विच इज द रेशियो ऑफ दीज टू इज ऑल्सो पॉजिटिव. अगर cos पॉजिटिव है तो cos का रेसिप्रोकल मतलब sec इज ऑल्सो पॉजिटिव. sin पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब cosec इज ऑल्सो पॉजिटिव. डू यू अंडरस्टैंड दैट? cosec थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? In short, when the angle theta is in the first quadrant, all are positive here. What we say here, all the trigonometric ratios are positive. Do you understand that? Is this clear to you? समझ में आ गया? Any doubts about that? Now this is what is given there on the figure 2.5. Figure 2.5 में ये दिया हुआ है. तो आपको ये चीजें अंडरलाइन करनी है. cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव. sin अगर पॉजिटिव है तो cosec पॉजिटिव होगा. cos पॉजिटिव होगा तो sec भी पॉजिटिव होगा. tan भी पॉजिटिव होगा. So all are positive. Is that okay? समझ में आ गया? Now we go for the next part. अगले पार्ट की तरफ जाते हैं. That is the next diagram I'll go for. Go for the next diagram. Yeah, this is the second diagram. Second diagram. यहाँ पर the angle is in the second quadrant. This is the angle theta. Can you see that? It's in the second quadrant. Second में क्या होता है जी बताइए? X is negative and Y is positive. Yes or no? The second quadrant. Now X negative है, but what is X actually? X का मतलब क्या होता है वहाँ पर? X is equal to X is cos theta. बराबर है? X is the cos theta and Y is sin theta. बराबर है क्या? This is X. और Y क्या होगा? Sin theta. Now you see here, इन्होंने this is the printing mistake in the book. ये हम ऐसा पता है x is cos theta. cos theta is equal to ये जो x है वो निगेटिव होगा मतलब cos theta निगेटिव होगा एंड sin theta जो कि y होगा वो पॉजिटिव होगा. इन्होंने क्या लिखा है? x is equal to sin theta is negative. यहाँ पर क्या लिखना चाहिए उन्होंने? What should they write here? They should write it as x is equal to cos theta is negative and y is equal to sin theta. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक का. आप उनको लेटर भेज सकते हो. आपके भी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? चेक करिए तो उसको करेक्ट कीजिएगा प्लीज. इज दैट ओके? दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक. ठीक है, चलिए अब दोनों का रेशियो लिया जाए tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. क्योंकि y पॉजिटिव है और x जो कि नेगेटिव है इसका मतलब है tan थीटा इज आल्सो नेगेटिव. समझे? रेसिप्रोकल की बात करें, रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक. और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक. ठीक है, तो यहाँ पर विच इज द ओनली पॉजिटिव थिंग? आई मीन फॉरगेट अबाउट द रेसिप्रोकल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ साइन कॉस टैन में विच इज द पॉजिटिव थिंग हियर? साइन पॉजिटिव. So in the second quadrant, I would say here, in the second quadrant, sine is positive. In the first quadrant, all are positive. समझ में आ गया? This is what we have seen so far. This is what we have seen so far. Any doubts about that? Let me proceed further. Is that okay? Let's proceed. आप लोगों ने इसको मार्क कर लिया, करेक्शन कर लिया, अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लिया. चलिए आगे चलते हैं. So now now we'll go for figure number 2.7. ये रहा figure number 2.7. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस फिगर नाउ. इस फिगर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. कैन यू सी दिस एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट? बराबर है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई हाल? बोथ आर नेगेटिव. x as well as y both are negative. yes or no? दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं. तो x is equal to cos थीटा भी नेगेटिव है एंड y is equal to sin थीटा भी नेगेटिव है. मैं डायरेक्ट इक्वल टू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ द सर्कल कितना एज्यूम किया है? 1. जबकि हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा. लेकिन ये यूनिट सर्कल रहने के कारण r इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू सिंपली cos थीटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? विच इज नेगेटिव, माइनस है.
समझे? और y इज इक्वल टू साइन थीटा वो भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है। अगर दोनों के दोनों भी निगेटिव है तो दोनों का रेशियो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों का रेशियो tan इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, isn't it? Now in the same way we can talk about the reciprocals. तो यहाँ पर अगर हम बात करें in the third quadrant what is positive? Tan is positive. Let us sum it all are positive in the first quadrant, sin is positive in the second quadrant, tan is positive in the third quadrant. अब हम देखेंगे fourth quadrant. Is that clear? आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये चीजें अंडरलाइन कर ली है टेक्स्ट बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, now I'll go for the next part. Figure number 2.8. Figure number 2.8. चलिए यहाँ पे the angle is in the fourth quadrant. Now we can see the angle is in the fourth quadrant. Fourth quadrant में क्या होता है? X is positive and Y is negative. बराबर है? मतलब cos theta is positive, cos theta is positive and sin theta is negative. समझे? दोनों का रेशियो y is negative, x is positive, तो tan क्या होगा? माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव अगेन. So which is the only positive thing over here? It is actually cos theta. So in the fourth quadrant, cos positive, isn't it? Is that okay? So if you want to sum this all, if you want to sum it out, इसका sum कैसे करेंगे हम लोग? Let me tell you now. When we want to sum this, we'll write it as, इसको सम करते समय हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे in the first quadrant all positive, in the second quadrant sin positive, in the third quadrant tan positive, and in the fourth quadrant cos positive. Is this okay? And how do you remember this? How do you remember this? We can remember we can remember something like add sugar to coffee. Add sugar to coffee. बराबर है क्या? Add sugar to coffee. Or somebody may say no, yeah, all students take coffee, isn't it? या फिर allow students to copy. Okay, anyways you can remember this. Is that clear? ASTC, it's very important, the formula that you have to remember. तो यहाँ पर इस पेज के नीचे जो सेक्शन है आप वहाँ पर ये लिख सकते हो, यहाँ पे है ना नीचे जगह, वहाँ पर आप इसको लिख सकते हो. Right here, add sugar to coffee, allow students to copy, all students take coffee, whatever. Is this okay? ठीक है, तो इसको आप याद रखना है आपको. ठीक है, I'll take this further now. So this is very important. Now let me go for the next part. Okay, how do we find out the measure of some particular angles? How do we find out the measure of the angles? चलिए आगे चलते हैं. Now यहाँ पे इस particular section में we are going to find out, we already know what are the trigonometric ratios of different angles. इसकी अगर बात करें यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखा है कि we have to find out the trigonometric ratios of different angles. ठीक है, so now I will explain it to you on the screen के ऊपर मैं आपको यहाँ पर explain करता हूँ सर. ठीक है, let's get going now. So let me consider here, एक सर्कल मैं कंसिडर कर रहा हूँ. Let's consider one circle here. एक सर्कल कंसिडर किया मैंने. ठीक है, और उसके लिए अब ऐसे मुझे बहुत सारी सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी.
So I'll just copy this here. I'll need this surface. नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आई विल कंसिडर द 0 डिग्री का एंगल। You can compare this with, you can compare with this diagram। ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है फिगर 2.9, इस डायग्राम, इसके साथ ये डायग्राम आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज द एंगल हियर? द एंगल इज, बिकॉज द एंगल इज लाइक दिस ना, तो 0 डिग्री का एंगल है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं पहले 90 डिग्री की बात करता हूँ। तो लेट अस कंसीडर हियर द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। So presently I am finding out the trigonometric ratios for angle 90 डिग्री। आप तो बोलोगे मुझे एक्चुअली आपको ये सारे एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दोबारा 360 इधर ही आएगा ना, यहाँ 360 यहाँ पर ही आता है ना दोबारा, बराबर है क्या? सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस, सबका पता है ना आपको? साइन, कॉस, isn't it? What is sin 0? चलिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। क्या होता है बता सकते हो कोई? 0 1 फ्लिप, 1 0 फ्लिप, 0 -1 flip and change the sign and again flip, -1 0। ठीक है, अब ये हम डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, once you know sin and cos, I think you can easily write what is tan। Tan is sin upon cos, 0 upon 1 is 0, because you know the rules of 0। Do you know the rules of 0? रूल्स ऑफ जीरो पता है ना आपको? पहला, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, isn't it? दूसरा, 0 into anything is equal to 0। तीसरा, anything upon 0 is not defined, infinity। बराबर है ना? So these are some of the rules of 0। anything raised to 0 is 1, then 0 raised to anything is 0। सब these are some of the rules of 0 that you should know। Well, coming back to 1 upon 0 हो जाएगा infinity and 0 upon -1 is again 0 and this is also equal to infinity। ये जो टेबल है वो आपको याद रखना है, वो मैं अभी आपको डिराइव कराने वाला हूँ ये सारे फॉर्मूले। तो स्टार्टिंग विद 90 डिग्री का फॉर्मूला। 90 डिग्री का फॉर्मूले के लिए मैं क्या बोलूँगा कि भाई दिस इज एक्स एक्सिस, वेल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन और ये रहा एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल के लिए मुझे यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ये होगा पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड क्यों है ये? बिकॉज द सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड यूनिट का मतलब क्या है? रेडियस इक्वल टू 1। तो अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट पी है विच इज ऑन द वाई कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? डैश डैश कॉमा डैश डैश। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, नहीं मुझे पता है ना अभी, ये तो एक्स एंड वाई मतलब विच इज ऑन वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू 1। रेडियस 1 है तो दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई होप यू डिड यू अंडरस्टैंड दैट, इजंट इट? अब अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे? कि भाई ये जो 0 है दैट इज नथिंग बट एक्चुअली cos थीटा। एक्चुअली वो r cos थीटा होता है बट r इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे। यू ऑलरेडी नो r इज इक्वल टू 1। तो दिस इज cos थीटा। cos थीटा मतलब क्या है? ये cos 90 और ये होता है sin थीटा।
sin 90. So according to the definition of trigonometric ratios की अगर हम definition देखें तो what is cos 90 is equal to, can you please tell me what is cos 90 is equal to? X is equal to cos 90 and that is equal to 0. Y is equal to sin 90, बराबर है? Y is equal to sin 90 and that is equal to 1. Now if I know sin and cos, can you tell me what is tan 90 is equal to? Tan 90 is equal to sin 90 upon cos 90. बराबर है क्या? Sin 90 upon cos 90. What is sin 90? 1 upon 0 and that is equal to not defined. Is it same as that of this? Is this okay? Any doubts about that? समझ आ रहा है क्या सबको? इसी तरह से मैं यहाँ पर sec 90 is going to be 1 upon cos 90. Sec 90 is 1 upon cos 90. What is cos 90? That is 1 upon 0 and that is also not defined. समझे क्या? Similarly, I can write down what is cosec 90 here. What is cosec 90? It is 1 upon sin 90. Sin 90 कितना है बताइए यहाँ पे? 1 है, बराबर है क्या? So this is equal to 1 upon 1. That is equal to 1. And likewise, I can write cot 90. What is cot 90 is equal to? Cot 90 is cos 90 upon sin 90. Cos 90 upon sin 90. Cos 90 कितना है? 0. Sin 90 1. So this is equal to 0. So these are the all trigonometric ratios of 90 degree. Any doubts about that? Is this very clear to you all? Hello? समझ में आ गया सबको ये? Is this okay? ठीक है? Now this is all given here on पेज नंबर, ये जो है पेज यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के लिए दिया है सब इन्होंने, गिवन दिस फॉर 90 डिग्री. फिगर नंबर 2.10, फिगर नंबर 2.10 देखो यहाँ पर उन्होंने 90 डिग्री के लिए वो दिया हुआ है. सेम थिंग what we have written over there. So likewise we can do it for the other trigonometric ratio also. तो ये मैंने 90 के लिए किया है, आपको वो बाकी trigonometric ratios के लिए भी करना पड़ेगा, isn't it? You have to do this for the other trigonometric ratios also. So this is for 90 degree. जबकि मुझे यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स के लिए करना है? Can you tell me for which all angles I have to do it over here? Check. ये जो पूरा का पूरा टेबल दिया है वो आपको याद रखना है, समझे? So I have to do it for all 0, 90, 180, 270, 360. Let me do it for 180 degree now. अभी फिलहाल तो मैंने आपको दिख रहा है, फिलहाल पे मैंने 90 डिग्री के लिए मैंने कर दिया है सॉल्व. लेट मी, अभी आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा और एक मैं सॉल्व करूंगा, 180, 270 या 0. बाकी के दो आपको होमवर्क एज होमवर्क ट्राई करने. शैल आई सॉल्व इट फॉर 180 270 डिग्री? आई सॉल्व इट फॉर 270 डिग्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आई डू इट फॉर 270 डिग्री नाउ. लेट्स सी. The method is all same. कहाँ से शुरू करना है मुझे? I have to do it for theta is equal to 270 degree. Theta is equal to 270 degree. कहाँ से क्या करना पड़ेगा आप मुझे एक एक करके इंस्ट्रक्शन बताइएगा. चलिए, what is the first thing I'll do? पहले मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, बड़ा सर्कल ड्रॉ करने का, ठीक है. फिर उसके बाद उसके ऊपर मुझे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे. चलिए वो भी कर लेते हैं. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है. अब एंगल है कितना? 270 डिग्री. 270 डिग्री एंगल मतलब वो कैसे होगा यहाँ पे? द एंगल इज लाइक दिस. इज दिस ओके? दिस इज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री. समझे? ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. तो ये रहा पॉइंट पी. पॉइंट पी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताइए अभी इस बार बिना किए बताइए. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी? What are the coordinates of point P?
बॉडी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट होगा, समझे? बराबर है क्या? एज पर द डेफिनेशन, एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो है ये है तुम्हारा आर। आर तो हमको पता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस, इसका रेडियस है 1, तो दिस इज आर कॉस थीटा। अगर हम इसको लिखेंगे इट बिकम आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा, आर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब थीटा क्या है? 270 डिग्री, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज कॉस ऑफ 270 एंड दिस इज साइन ऑफ 270, समझे? चलिए, तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू cos of 270 and that is equal to, what is its x coordinate? 0. So let me write it over here, 0. This is equal to 0. Y is equal to sine of 270 degree, that is equal to -1. अब अगर मुझे साइन और cos मिल गया तो कैन आई राइट इट फॉर tan? Yes. What is tan of 270 degree? Tan of 270 degree is equal to sine of 270 degree upon cos of 270 degree. That is equal to क्या आएगा बताइए? What is sine of 270 degree? -1 upon 0. Anything upon 0 is not defined. बराबर है क्या? Similarly, I can write here what is reciprocal of cos, sec of 270 degree. Sec of 270 degree is 1 upon cos of 270 degree. That is equal to 1 upon 0, and that is also not defined. समझे क्या? Similarly, cosec of 270 degree. Cosec is reciprocal of sine, that is 1 upon sine of 270 degree. Substitute करिएगा, this is equal to 1 upon -1, and that is also -1. Likewise, I can write down what is cot of 270 degree also. Cot of 270 degree is cos upon sine. Cos of 270 degree upon sine of 270 degree. Cos का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0. And this is -1. So this is also not defined. Any doubts about that? Now the same thing we have seen here in the table. If you see, ये जो टेबल हमने देखा है इसमें वही वैल्यूज दिए हैं, -1, 0, नॉट डिफाइंड। चेक करो, ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा उसमें भी वही तो वैल्यूज है, बराबर है क्या? -1, 0 एंड नॉट डिफाइंड, साइन कॉस। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड इट आउट फॉर ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए फाइंड आउट कर लिया है। बाकी के स्टैंडर्ड एंगल मैंने कौन कौन सा फाइंड आउट किया है यहाँ पे? आई हैव फाउंड इट आउट फॉर 90 एंड 270, 90 एंड 270। बाकी के जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है दिस इज 90 और इसके बाद 270 का भी कर सकते हैं, 360 का भी कर सकते हैं। 360 डिग्री इज सेम एज दैट ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि वो घूमकर वहीं पर चला आता है, बराबर है क्या? 360 डिग्री सेम एज दैट ऑफ 0 डिग्री। सो इस तरह से हमको ये वाली चीजें करनी है। अब इसके बाद इसके आगे वी वांट टू डिराइव इट फॉर 120 डिग्री आल्सो। इफ यू रेफर द पेज, इफ यू रेफर द टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हो तो वहां पर अगला जो पार्ट है एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री। एंगल ऑफ व्हाट मेजर? 120 डिग्री। 120 डिग्री अभी अपने को फाइंड आउट करना है। 120 डिग्री, 225 डिग्री। तो लेट्स गो फॉर finding this. Let's go for finding out these values. ठीक है? 270 120 डिग्री को अभी हम फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। Now before I start with this, यहाँ पर मुझे आपको कुछ चीज बतानी है। The property of 30, 60, 90 triangle. Do you remember the property of 30, 60, 90 triangle? Yes. एक प्रॉपर्टी मुझे आपको बतानी है, the property of 30, 60, 90 degree triangle. Let me explain it. ये आपको I'll explain this as a note. 30 degree,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मुझे पता नहीं आपको ये प्रॉपर्टी याद है या नहीं है, आई डोंट नो, लेट्स देखते हैं। समझिए ये एक 30 60 90 का ट्रायंगल है, ठीक है। इसे ट्रायंगल ऑफ 30 60 90। In this triangle, let me say this is 90 degree, this is 30 degree, and this is 60 degree. तो इसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, let me call this as A, B, C. So this is AB is equal to side opposite to 30 degree, and that is equal to dash dash times the hypotenuse. ये एक है, और दूसरा है ये साइड BC is equal to side opposite to 60 degree. Side opposite to 60 degree angle is equal to dash dash. I want you to tell me this property. Half क्या? Half the hypotenuse. Half of the hypotenuse. Do you remember this? Do you remember this? Do you all remember this? And 60 degree के सामने वाला साइड क्या होता है? Sorry? Root 3 by 2 times the hypotenuse. I hope all of you remember this formula. ये आपको याद है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो फिर भी मैं इसको बॉक्स में डाल के यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना? Is this okay? You have to know these things. Is that okay? इसी तरह से और एक है प्रॉपर्टी. This was the property of 30 60 90. 30 60 90 का प्रॉपर्टी था. और एक प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने स्कूल ज्योमेट्री में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्या प्रॉपर्टी है भाई? 45 45 90 का प्रॉपर्टी है. चलिए बताइए. हाँ, क्या है प्रॉपर्टी? वेरी करेक्ट, बराबर बोला. 1 बाय, यस, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट. ओके, सो मैं यहाँ पर बोलूँगा दिस इज ट्रायंगल ABC once again, and this is an isosceles right angle triangle, so these angles are 45 degree each. These angles are 45 degree each. So what is the property that we have to make use of here? Side opposite to side opposite to 45 degree is equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse. ये प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं इसमें, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको अभी याद दिलाए. टेल यू द फैक्ट, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज व्हाइल सॉल्विंग द थिंग्स ओवर हियर. इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज बस आपको यहाँ पर अभी रिवाइज करा दिए हैं. तो लेट अस टेक दिस डिस्कशन फर्दर. अब हम आगे चलते हैं इसमें. लेट्स टेक दिस फर्दर, ठीक है. So keeping this in mind, I'll go for the next part here. So अब मुझे यहाँ पर जो एंगल है, this angle is to find the trigonometric ratios. Find the trigonometric ratios of theta is equal to 120 degree. Theta is equal to 120 degree. चलिए शुरुआत कैसे करना है अभी आप बताइए. मैंने 90 डिग्री और 180 डिग्री का आपको बता दिया था. शुरुआत कहाँ से करनी होती है? सेम. What is the first thing we do? First we consider सर्कल. एक सर्कल कंसीडर करिएगा.
अच्छा खासा बड़ा सर्कल कंसिडर करिए क्योंकि इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल चेंजेस आपको करने होते हैं. So this is the first circle I have considered. Then I will consider its x and y axis. ये होगा सर्कल हो गया. What angle we are looking for here? 120 डिग्री. 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. So 120 degree. So I'll consider this is the angle of 120 degree. समझ में आ गया? ये एंगल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, 120 डिग्री का एंगल है. Well, this is x axis to level it. ये रहा ओरिजिन, ये है हमारा y एक्सिस और ये है पॉइंट P. दिस पॉइंट P बराबर है ना. और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x और y. Now let us say that this is a standard unit circle. Standard unit circle मतलब इसका रेडियस कितना है जी? 1. And this angle is equal to 120. This theta is equal to 120 degree. आई बात समझ में? ओके. चलिए अब इस P पॉइंट से मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आई हैव टू गो फॉर सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन है? कोई नहीं. इस पॉइंट P से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस तरह से. इस परपेंडिकुलर इज M. इस परपेंडिकुलर इज M. अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगल 120 है तो व्हाट इज दिस एंगल? ये दिस इज 60 डिग्री. और ये 90 है तो व्हाट इज दिस एंगल? 30. एंड दिस OP, दिस रेडियस इज इक्वल टू 1. रेडियस कितना है? 1. मतलब नाउ आई कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल PMO. इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO. Right angle triangle PMO, which actually happens to be 30 degree, 60 degree and 90 degree का triangle. Yes or no? बराबर है. Now in this case, what is PM? Side PM is equal to side opposite to क्या है वो? ब्लू कलर का जो है side PM, side opposite to 60 degree, and that is equal to √3 by 2 times hypotenuse. तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? 1 है कि नहीं? हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस इज OP ना, that is equal to 1. And therefore what is distance PM is equal to √3 by 2. Are you understanding that? Is this okay? उसी तरह से अगर ये मैं MO की बात करूंगा, if I talk about this MO, समझ में आ रहा है? If I talk about this MO thing, MO is actually side, this side is opposite to 30 degree ना. ये रहा 30 डिग्री का एंगल, बराबर है क्या? 30 डिग्री के अपोजिट है ये MO. तो MO is equal to, I'll say here, side opposite to 30 degree, and side opposite to 30 degree is equal to half of the hypotenuse. Hypotenuse is OP here, so this is half of OP, and OP is 1 here, so this is simply half. Now these are the distances. These are the distances. Coordinates are either positive or negative, but the distances are always positive. इसके चलते हुए ये जो P है, ये जो P हम यहाँ पर लिख रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, इस P के x का वैल्यू क्या आएगा? What is this x का वैल्यू? X is actually the distance along x direction, मतलब this distance is x ना, ये होगा x. Yes or no? It's on the left side. तो MO, ये जो उसका P x कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा? माइनस. सो MO जो है वो हाफ है,
बट इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ का, दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी माइनस हाफ. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट ओके? एंड y कोऑर्डिनेट वो ऊपर है, y x एक्सिस के ऊपर है, so y कोऑर्डिनेट is that distance pm, and this pm is equal to root 3 by 2. Is this understood? So what are the coordinates of p? p के coordinates क्या हो गए यहाँ पर? ये हो गए p is equal to x comma y, but that is equal to minus half comma root 3 by 2. ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तुम्हारे? हेलो, ये समझ में आ गया सबके? तो अब मेरे को पता चल चुका है, यू आई हैव अंडरस्टूड दैट दिस x is nothing but r cos theta. X is nothing but r cos theta and y is nothing but r sin theta. समझ में आ गया? इज दिस ओके? चलिए अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं. तो r क्या है यहाँ पर? r is equal to 1 because it's a standard unit circle. समझे? isn't it? तो मैं क्या लिखूंगा? cos of 120 degree is equal to, what is this x coordinate? Minus half. Is that understood? Sine of 120 degree. Sine of 120 degree is equal to its y coordinate. That is equal to कितना है ये? Root 3 by 2. Is that understood? This is equal to root 3 by 2. Isn't it? So similarly, I can write what is tan of 120 degree. Tan of 120 degree is actually sine of 120 degree upon cos of 120 degree. Now let me substitute this. इसको मैं substitute कर लेता हूँ यहाँ पे. So what is this going to become? This will become sine of 120 degree is root 3 by 2. Sorry, minus. क्या हो गया? Tan of 120 degree is root 3 is sine upon cos ना? एक मिनट, क्या हो गया फिर को? करेक्ट. हाँ, and tan is sine upon cos. कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, x upon y नहीं होता tan. Tan theta is sin theta upon cos theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. Understood? तो यहाँ पर sin is 120, that is root 3 by 2 upon cos is minus half. समझ में आ गया? 2 gets cancelled. So what is tan of 120 degree is equal to minus root 3. Is that understood? Likewise, I can find out its other coordinates also. उसके बाद बाकी के भी coordinates हम find out कर सकते हैं. बाकी के trigonometric ratios, मतलब sec of 120 degree will be reciprocal of cos. आप उसको लिख सकते हो. I'll leave it to you. Then cosec of 120 degree is reciprocal of sine. क्या आप लिख सकते हो? I'll leave it to you. And cot of 120 degree is sine of cos. That is sine of 120 degree on cos of 120 degree. Is this clear? ये भी आप लिख सकते हो. I will leave it to you. Any doubts about this? So this way we can find out the trigonometric ratios of any angle. Of any angle. Is that understood? Okay. Now eventually ये जो है ये आपको दिया है पेज नंबर 17 पर, 17 and 18 पर ये सारे trigonometric ratios दिए हुए हैं. I hope this is clear to you all. Is that okay? Well, let us proceed further now. आगे चलते हैं. Let us take this further. Okay. Brilliant. Now I think I'll start solving exercise 2.1. अगर यहाँ पर आप देखते हो तो मैं वहाँ पर exercise 2.1 शुरू कर सकता हूँ. Let's see here.
ये रहा एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वही है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, क्या दिया है, वेरियस एंगल्स। इसमें से मैं कौन सा सॉल्व करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। आई विल सॉल्व इट फॉर, कौन सा सॉल्व किया करना है, मैंने वो टिक करा के दिया था, 150, 210, 300, 330, -60, -120, -225, 270 एंड -350। ये वाले में सॉल्व करूंगा, आप टिक कर लीजिएगा। These I'm going to solve. फिर I'll be solving this also. I'll be solving this also. Okay. And question number 6 ना. Okay. आपने टिक कर लिए. So let's begin. The method is all same जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही मेथड होगा. ठीक है. So let us start solving this now. So here I would say this is exercise. Exercise 2.1. Page 21. प्रॉब्लम नंबर 1। अब आप मुझे बताते चाहिएगा जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, वहां से शुरू करता हूँ। सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है? -315 लास्ट वाला। थीटा इज इक्वल टू -315। -315 मतलब कैसे होगा? चलिए आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ड्रॉ द सर्कल। जी, लाउडर एंड क्लियर। वाई डिस्टेंस मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो आप? आपने जो लास्ट में किया ना, और वो सब नीचे है, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रीवियस क्वेश्चन का या इसका? वाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, बाय डिस्टेंस फार्मूले से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का फॉर्मूला यूज करते हो तो वो और आसान हो जाता है। अब मुझे बताइए 315 मतलब कैसे, कितना आएगा एंगल? एक तो वो तो निगेटिव एंगल है, मतलब यहाँ से उल्टा मुझे काउंट करना पड़ेगा, -90, -180, -270 और फिर उसके आगे कितना जाना है, 45 डिग्री। Are you understanding what I'm saying here? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस। तो अब यहाँ पर मुझे वो एंगल दिखाना है। I'll show you the angle. Go like this. Okay. ये हो गया ना रे, दिस इज द एंगल। देखिए यहाँ से इधर गया तो -90, -180, -270 और ये हो गया माइनस, तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू -315। इज दैट अंडरस्टूड? Well, this is x-axis, ये रहा origin, this is y-axis and this is point P. और इसी P के जो coordinates होंगे वो क्या coordinates होंगे? Well, let me call this as x and y for the time being. Let me call this as x and y. So ये angle कितना है रे बाबा? What is this angle? What is this angle? Can you please tell me? 45 degree. नहीं, 270 के आगे 45 डिग्री। अच्छा, उसी तरह से आप मुझे बताइए
व्हाट इज दिस एंगल, ये तो सेंटर का ये जो एंगल है, व्हाट इज दिस एंगल, इज दिस आल्सो 45 डिग्री, सही है। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी डू, इस ट्रायंगल तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे या नीचे, समझे, दिस इज एम, दिस इज द परपेंडिकुलर। सो अगर ये परपेंडिकुलर ये 45 है तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री, समझे क्या, isn't it? So this is actually 45 45 90 का, and what is this radius is equal to, radius is 1, radius is 1, right? तो अब ये जो ट्रायंगल OMP है, इस ट्रायंगल OMP, this is actually 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया, करेक्ट। So I can say here OM is also equal to PM, OM मतलब horizontal, PM मतलब vertical, OM is equal to PM is equal to side opposite to 45, because both are the sides opposite to 45 degrees, sides opposite to 45 degree, and that is equal to 1 upon root 2 times hypotenuse. But what is the hypotenuse here? This OP is the hypotenuse, na? OP is the hypotenuse. So I'll say this is 1 upon root 2 times OP. But OP is the radius. OP, ये जो है OP वो radius है ना? Radius, that is equal to 1. So I'll say here that this is equal to 1 upon root 2. So OM is equal to PM is equal to 1 upon root 2. अब देखिए ये तो दोनों distances है, these both are the distances, let me say, ये दोनों भी, ये जो OM है या PM है, ये दोनों के दोनों distances है, but they are in the first quadrant. So the distance, this distance is 1 upon root 2 and this distance is also 1 upon root 2. तो ये जो coordinates है x और y, ये क्या हो जाएंगे, this is going to be 1 upon root 2 and y is also 1 upon root 2. I hope you understand what I am saying there. बराबर है क्या? And this is r cos theta, but r is 1. So this is cos of theta. Theta क्या है? Minus 350. And this is sin theta. This is sin theta. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is that okay? Well, so let us continue here. अब हम क्या लिखेंगे इस point P के coordinates? What are the P के coordinates? I'll say P के coordinates are plus है दोनों भी 1 upon root 2 1 upon root 2, and that is equal to x comma y. That is equal to x comma y. Therefore, from the new definition, what I'll say here, this x comma y, this x is equal to r cos theta, and this y is equal to r sin theta, and this r is equal to 1, and this theta is equal to minus 350. तो चलिए लिख लेते हैं. Therefore, what is x is equal to cos of minus 315, and that is equal to 1 upon root 2. Similarly, y is equal to sine of minus 315, and that is also equal to 1 upon root 2. Any doubts about this? Once I know sine and cos, I can find out all the remaining trigonometric ratios. Matlab tan of 350 minus 350 is equal to, tan is equal to sine upon cos. Tan is equal to sine upon cos. Let me write down, this is sine of minus 315 upon cos of minus 315, and that will be giving me what, 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2, that is equal to 1. So once I know sine cos tan, you can find out what is sec of minus 315. I will leave it to you. You can find out cosec of minus 315. I leave it to you. And you can also find out cot of minus 350. I will leave that also to you. Is this clear to you all?
एनी डाउट्स अबाउट दैट? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? सबको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? वी आर स्टडिंग मैथ्स। इतना तो समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वो भी बस हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए, so that was the angle of minus 315, isn't it? So the angle of minus 315. अगर आप आगे के क्वेश्चंस देखते हो जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखिए व्हाट आर द अदर क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व। ऑफ कोर्स 150 डिग्री, ये 150 डिग्री वाला मैं सॉल्व करने वाला है ना। तो 150 डिग्री कैसे करेंगे? व्हाट इज 150 डिग्री? 150 इज 180 माइनस 30। 150 डिग्री के लिए हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? और 150 डिग्री अगर 150 डिग्री का मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, देखिए 150 का मतलब है एंगल इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर। चेक, ये होगा 150 डिग्री नहीं, क्योंकि इट विल बी एक्चुअली 90 प्लस दैट इज 150 ना, isn't it? तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल इज 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री का एंगल है और मैं यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम हियर, ये वाला डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूंगा। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज एम, दिस इज पॉइंट पी। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज दिस एंगल? क्योंकि ये 150 है, टोटल 180 होता है ऐसा वाला, तो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। यस और नो? ये हो गया 90, तो ये कितना हो गया? 60। एंड दिस रेडियस r is equal to 1, isn't it? So can you find out what is OM and PM in this case? फाइंड आउट कर पाओगे ना यहाँ पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अभी आपको मिल जाएंगे, सही है ना? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इन दिस केस यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, समझे? ठीक है, उस सो दिस इज वन क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन अगर मैं और एक इसमें से कंसिडर करूं, समझो कि माइनस 225 हो या 210 की बात करें, 150 के बाद 210, तो 210 के लिए भी वैसे ही होगा। 210 जो होता है एंगल, इफ आई से दिस इज थीटा इज इक्वल टू 210, ये है थीटा इज इक्वल टू 150। उसका डायग्राम मैंने आपको दिया है। कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा फॉर दिस? ओके, अगला है थीटा इज इक्वल टू 210, उसका भी डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। 210 मतलब 180 से आगे होगा वो, इट बी अहेड ऑफ 180। चेक करिए, यस वेरी गुड, वेरी करेक्ट, इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। उसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, सॉरी सेम होगा, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। नहीं ना, वो मेरे को नहीं आता है, तो बहुत डर लगता है। यस, देखो यहाँ पर इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कितना है? 210, 180 प्लस 30, इट विल बी 180 प्लस 30, ऐसे होगा ना? सो दिस इज 180 प्लस 30, दैट इज 210। अब क्या करोगे? 210 अब कैसे करोगे?
once again drop a perpendicular, once again we drop a perpendicular. कहाँ से perpendicular drop करेंगे? ये देखिए यहाँ से, मेरा हाथी और यहाँ से perpendicular drop करिए, ठीक है? Isn't it? This is the perpendicular. So this is point P. This is point P and this is M. अब आप मुझे बताइए अगर ये 210 है तो what is this angle? Correct, 30 degree. And what is this angle? Okay. So what is this angle? 60 degree. बराबर है क्या? अब यहाँ पर ये जो px, y होंगे, I'll find out both the distances, that is OM and PM. लेकिन दोनों के दोनों भी माइनस होने वाले हैं. क्यों? माइनस y, because they are in the third order. तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिखते समय नेगेटिव लिखने का. Understood? Isn't it? And the radius is equal to 1. And once again, what are we going to use here? 30, 60, 90. आप ये दोनों के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कल आते समय फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा. प्लीज ट्राई टू सॉल्व these two sums as a homework. बाकी के जो है फिर मैं वो सॉल्व कर लूंगा. दोनों 30, 60, 90 का है. Is that clear? Okay. So I think we'll stop here today. यहाँ पर रुक जाते हैं आज.